So before starting, so hello and good morning everyone. Good to see you all here in our today's session, and I'm glad to have you all here as this is our seventh session under this initiative, Synergy Sphere Uniting Minds for Collective Success. So today is our seventh session. So let's start it with a positive thought. So I hope that you can see my slide. Life is like a rainbow. You need both the rain and the sun to make its colors appears. So, you know, we all face some difficult points in our life, but and the same time we after some difficult points we get some happiness also. There are some happy moments in our life, some sad moments in our life, and I think that this quote says it well that after these moments are making our life happening, isn't it? If we don't have this गम और खुशी अगर लाइफ में ना हो तो फिर लाइफ का कुछ मजा नहीं रहता है. So for this thought, let's start our today's session. But before we start it, I would just like to ask you, why do you have you observed anything about this PPT? There is some theme in it, and if anybody can guess it, you can put it in the chat box. What theme is here, and why do you think we have kept this theme? In the first slide, there was one image, and here also in the slide you can see what is this image of. Is of students. The 7 colors you can see. Yeah, life is colorful. Great, Kiran. Good morning, good morning. So I'm asking you all now, there is a theme which is in the slide in the PPTs, which you can see in an image. What is this image? Yes, it's a rainbow. Very good. So why do you think I have taken this image of rainbow here? Any guesses from your side? Why this rainbow? I said this answer like when I was introducing, when I was just welcoming you all. So rainbow, a colorful thought. Very good. Just a hint that I said the answer when I was welcoming you all. So why this rainbow? It represents a number. Life is full of colors and ups and downs. Really good, Kiran. Yeah. To motivate you. Say sad and joy both is required in life. Yes, it makes your life happening. Positive thinking. Yes, very good. So yeah, good guesses, but nobody has guessed why this number. Okay, this rainbow is presenting number 7. Still strong and every and happy moment. Okay, Yash Raj, very good. Happy every moment. So this number 7 is 7th session. Yes, Kiran, right guess. Only you could guess it because I have chosen this rainbow as a theme today as it is our 7th session, and I just wanted to add a little bit to it. So I hope that you liked it and you all are motivated by this thought. So let's start our session now. And today, as it is our 7th session, so I have something special to reveal at the end of the session to make this session little more interesting. So if you want to know about it, you will have to continue till the end of the session. And there is one more announcement for you all, and it's that now this Zoom link was shared with you on Telegram and as well as on your email to join the session. But henceforth, the session will be conducted through your LMS only. So henceforth, for to join any of the Synergy Sphere session, you will have to log in to your LMS, and the link will be available there. So I hope. Okay, yes. So I hope that you all will be able to join from there as well. And thank you for joining us here for today. Now, for without the further ado, let's start our session. And so for those who are joining the session for the first time, let me introduce what is this platform is all about. Uh,
Under this initiative, we as MIT are aiming to provide you all a platform to share your knowledge, wisdom, and experiences with your fellow peers. And our primary objective within this initiative is to foster a learning community where students can not only exchange insights within their respective domain, but also share their personal life journeys and experiences. Our goal here is to inspire you all to connect with each other, allowing you all to learn and grow together. So now let's welcome our speaker for today, Mr. Shahabuddin Khan, who is from the Feb 2023 batch, and he is pursuing PGDM program with us with specialization in project management. With over 20 years of dedicated experience in the field of mechanical engineering, he has been contributing significantly to the growth and success of SMS India Private Limited, currently holding the position of Assistant General Manager. He has played a crucial role in installation, testing, and commissioning of media and power piping in the BOF and LHF areas, as well as the erection and alignment of static equipment in the same domain. And he holds a bachelor's degree in mechanical engineering from IIMSR and a diploma in mechanical engineering from North Calcutta Polytechnic. Throughout his career, he has constantly demonstrated a commitment to excellence and a passion for contributing to the success of organization, and he with all the organization he has been associated so far. So this session will be conducted in Hindi and English, both language, to make it more easy and understandable for you all. So I would like to welcome our sir once again here and will like to initiate the session. So welcome sir to our uh, Synergy Sphere session, and thank you for being a part of it. So sir, to start it, I would just like to know a little more about you. That was just a brief introduction. So there is a lot more. तो आप प्लीज बताइए हमें कि आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई थी. Firstly, good morning to all and Happy New Year also because we are now in the new year and we have new journey for this new year. So सबको मेरा नमस्ते देके मैं चालू कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ अभी. मेरा जो इंस्टीट्यूट है MIT स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मैं इसी इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट हूँ. तो मेरा जर्नी चालू हुआ, देखिए मैं 2003 में डिप्लोमा पास किया हूँ. पास आउट इन 2003 फ्रॉम कोलकाता. आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल. सो मैं यहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैं एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम चालू किया एज ए. दिस फील्ड आल्सो वाज ए कंस्ट्रक्शन फील्ड. उसके बाद मैं दूसरा ये अभी जिस कंपनी में मैं हूँ, SMS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इट्स ए जर्मन कंपनी. द ग्रुप इज SMS ग्रुप. सो इस कंपनी में आने, ये मेरा फोर्थ कंपनी है. इससे पहले मैं और 3 कंपनी में काम कर चुका हूँ और ये मेरा फोर्थ कंपनी है. तो इस फोर्थ कंपनी में मैं अभी करीब 13 साल 7 मंथ कंप्लीट कर चुका हूँ एज ए. नाउ माय डेजिग्नेशन इज एज ए GM. तो पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं जो डिप्लोमा किया उसके बाद नौकरी चालू किया. नौकरी चालू करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट इज नॉट सफिशिएंट फॉर माय फील्ड. बिकॉज अभी क्या है ना, कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव कम्पिटिशनेस इतना बढ़ गया कि आप ओनली डिप्लोमा लेके आप इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते. मैं जो रियलाइज किया मेरा एक्सपीरियंस में, मेरा फील्ड में, तो उसके बाद ही मैं फिर IIMSR से BE किया. उस टाइम 2012 से पहले आप लोगों को याद होगा कि डिस्टेंस एजुकेशन, सॉरी टेक्निकली डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा था. और 2015 के बाद UGC उसको बंद कर दिया. तो मेरे 2012 में मैं BE कर चुका था.
तो मेरा वैलिड हो गया। तो आफ्टर बी के बाद मुझे और रियलाइज हुआ कि मुझे, मैं जब जिस सिचुएशन में हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, इसमें मुझे मैनेजमेंट कोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे, मेरा सामने MIT SD का अपॉर्चुनिटी आया और मैं इसमें एज ए PGDM, अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। अभी रिसेंटली एग्जाम भी चालू होगा, तो असाइनमेंट जमा करना पड़ रहा है, तो पढ़ाई भी चल रहा है साइड बाय साइड। यस मैम। सो सर इट वाज, आप जैसे बता रहे थे आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आपका करियर ग्राफ कैसा रहा है? मतलब अपने जो फर्स्ट कंपनी थी आपने वो कैसे ज्वाइन करी? आपको क्या प्रिपरेशंस करी आपने? जी जी। देखिए, मैं जब डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, मेरा फर्स्ट कंपनी था जमशेदपुर में, टाटा स्टील में एक सब कॉन्ट्रैक्टर, जो टाटा स्टील से ऑर्डर लेके काम करता है। वो था ईश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी। उस कंपनी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वही मेरा फर्स्ट लाइफ में मेरा हमको नौकरी दिया। तो उसके बाद ही मैं वहाँ पे करीब करीब 3 साल था उस कंपनी में। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी गया GDCL। वो इंटरव्यू थ्रू ही हुआ था, कंट्रैक्टर कंपनी होने से भी वो लोग, उस टाइम था मैं एज ए सुपरवाइजर काम चालू किया था, साइट सुपरवाइजर। कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप साइट सुपरवाइजर जो टर्म से आपको सुनने में आएगा, इनिशियल जो लोग ज्वाइन करता है। तो उसके बाद मैं GDCL, घैनन डंकुल एंड कंपनी लिमिटेड, नाम सुने होंगे आप लोग, उसमें ज्वाइन किया। उसका उस GDCL ज्वाइन करने के बाद आफ्टर 11 मंथ्स मुझे अपॉर्चुनिटी मिला लार्सन एंड टुब्रो से, LNT। LNT, आई थिंक यू नो, इज अ बिग जायंट इन इंडिया एंड एशिया ऑल्सो। तो LNT में मैं 4 साल ज्वाइन कंपनी नौकरी किया। लेकिन LNT में फॉर्चुनेटली एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए, ईश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरा फर्स्ट कंपनी था। उसमें मैं टिस्को में ज्वाइन किया, टाटा स्टील में, एज ए साइट सुपरवाइजर। फिर जब GDCL ज्वाइन किया तो मुझे मुझे उड़ीसा चला जाना पड़ा। तो जमशेदपुर से डिटैच हो गया। बट फॉर्चुनेटली जब मैं LNT ज्वाइन किया, फिर मुझे जमशेदपुर में ट्रांसफर किया टिस्को के अंदर। तो मैं जब LNT ज्वाइन करने के बाद आया और वही ईश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके उसका जो ओनर था उनके जाके मिला, उनका जब पैर में छुआ, तो वो मुझे हक करना चालू कर दिया कि वो तो लाइफ में पहली बार कोई आया जो इस कंपनी से जाने के बाद आके पैर छू रहा है जो भी है। तो वो कंपनी में कभी नहीं भूलूंगा कि वहीं से मेरा लाइफ चालू हुआ था, सर्विस लाइफ। तो ओके। LNT में 4 साल नौकरी किया, जमशेदपुर में ही था LNT में। वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का जो ब्लास्ट फर्नेस रहता है, ब्लास्ट फर्नेस जहाँ पे रॉ मटेरियल से लिक्विड आयरन प्रोड्यूस होता है, तो वो ब्लास्ट फर्नेस का H&I, ये दो ब्लास्ट फर्नेस वहाँ पे मैं था LNT के साथ। तो LNT के बाद जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला SMS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसी टाइम वो जमशेदपुर में जब मैं नौकरी कर रहा था LNT में, तब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम SMS का जो एम्प्लॉय लोग था, वो लोग भी वहाँ पे आता था, बट दे आर द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। SMS इंडिया एम्प्लॉय आर द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, सो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो क्या होता था, वो लोगों का लाइफ स्टाइल देख के, वो लोगों का ड्यूटी आवर्स देख के, वो लोग 8 घंटे ड्यूटी करता है, 2 घंटा बीच में लंच लेता है, लंच टाइम, फिर 9 बजे आता है, 6 बजे पैकअप चला जाता है। और हम लोग, LNT में था, LNT में आपका 12 घंटा मिनिमम ड्यूटी आवर्स रहता था, 1 घंटा ओनली लंच। तो ये सब देख के मुझे ये चालू हुआ कि मैं अगर SMS में ज्वाइन कर पाता, तो मैं भी ऐसे ही लाइफ स्टाइल लीड करता, ऐसे ही करता। तो वो सोचता था। फिर फॉर्चुनेटली एक दिन मेरा Naukri.com से कॉल आ गया कि आपको SMS इंडिया से ऑफर है, आप इंटरव्यू देने के लिए एग्री है कि नहीं। तो मैं ऑब्वियसली हाँ कर दिया। लेकिन उस टाइम था मैं जमशेदपुर, और नया नया शादी हुआ मेरा। तो पैसा भी उतना हाथ में नहीं है कि अभी गुड़गांव जाऊं, वो शॉर्ट पीरियड में, विद इन 1 वीक, शॉर्ट पीरियड हम्म। में दिल्ली, गुड़गांव में उसका हेड ऑफिस है, हरियाणा में। तो मुझे पता चला कि फ्लाइट में जाना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेन टिकट उसमें अवेलेबल था नहीं उस टाइम में। तो मैं क्या करूं? तो उस टाइम मेरा मिसेस ने बोला कि मेरे पास कुछ पैसा है, मैं तो, तुम उसी पैसे से फ्लाइट का टिकट खरीद लो। अरे तो वाह। वो मुझे, जी जी, वो सपोर्ट किया, वो मुझे पैसा प्रोवाइड किया।
Yes, There is sorry, drag. ma'am. It's okay, sir. I think now the problem is resolved. Yes, yes. ओके सो सर यस यू कैन कंटिन्यू सर जो आप बता रहे थे कि आपका जी आपने ज्वाइन कैसे किया, आपकी वाइफ ने आपको हेल्प करी, फिर उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही? जी, तो मैं वही 2010 में एसएमएस इंडिया ज्वाइन करने के बाद अभी कंटिन्यू मैं एसएमएस इंडिया में ही हूँ। ओके। और इसी में काम कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट स्टील इंडस्ट्री में ट्रैवल किया। इसमें जेएसएल है, जेएसडब्ल्यू है, टाटा है, हम लोगों का इंडियन का सेल का डिफरेंट प्लांट है, जैसे दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, अ, ऐसे सेल का भी डिफरेंट प्लांट में काम कर चुका हूँ। अच्छा। और हाँ, इसी में बेसिकली मेरा टोटल एक्सपीरियंस स्टील स्टील इंडस्ट्री में ही है। और ओके। इस टोटल ट्रैवल में मैं डिफरेंट एक जॉब कर चुका हूँ, जो आपका रेल का, जैसे जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे हम्म। भारत ट्रेन का जो व्हील प्लांट है जिसमें व्हील प्रोड्यूस होता है, ये व्हील प्रोड्यूस हो रहा है आपका राइबरेली हम्म। RINL का हम्म। फील्ड में। तो वो जो प्लांट है वो हम ही लोगों का एसएमएस का ही सप्लाइड टेक्नोलॉजी, वो हम्म। पूरा EPC प्रोजेक्ट था। मतलब हम्म। उसका टोटल शुरू से आखिरी तक सब हम ही लोगों का टेक्नोलॉजी एंड सबको हम ही लोग किए हैं। उसमें जो चक्का बन रहा है बुलेट ट्रेन का, हम्म। वंदे भारत ट्रेन का, वो चक्का वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, व्हील। और रिसेंटली अभी ये हम लोग हावड़ा में, कलकत्ता का हावड़ा में एक तो वर्कशॉप बनाया है, जो ओके। आपका वंदे भारत का जो मेंटेनेंस वर्कशॉप है। तो ये वंदे भारत रिलेटेड ट्रेन के रिलेटेड चक्का एंड वर्कशॉप मेंटेनेंस का ये दो फील्ड में करीब 3 साल काम कर चुका हूँ। तो टोटल 20 वर्ड्स एक्सपीरियंस में आपका 3 साल गया ये वाला प्रोजेक्ट में, और बाकी टोटली मेरा स्टील इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है। ओके तो सर मतलब ये जो टायर्स बनाते हैं, ये हम ट्रेन के लिए, इसमें व्हील। हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, स्टील और कुछ और मिक्स किया जाता है इसमें? नहीं नहीं, ये तो एक हाई क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस मतलब होता है। ओके। जो स्टील नॉर्मली हम लोगों का जो घर बनाने के लिए जो रॉड मतलब हम्म। रेबर बार जो यूज होता है, इसका सेम मटेरियल नहीं था, क्वालिटी हाई क्वालिटी स्टील रहता है उसमें। वो अच्छा। टोटली उसमें हीटिंग, प्रेसिंग, फोर्जिंग करके उसको बनाया जाता है। डिफरेंट प्रोसीड्यूर रहता है उसका। ओके। ओके सर दैट्स ग्रेट सर। एंड मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो अभी गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप करके उनके प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं? जी जी ओके दैट्स ग्रेट। सो सर जैसे आपके एक्सपीरियंस में आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए होंगे, और हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं जो सेम डोमेन से हैं, वो भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। जी जी। तो या तो ग्रेट। फिर मैं जानना चाहूंगी कि आप जो प्रोजेक्ट्स हैंडल करे होंगे उसमें आपको भी बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, आपने कुछ कुछ आप जैसे बता रहे हैं आपने ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है तो आपके सक्सेस भी इतने सारे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा हमें डिटेल में बता सकेंगे कि आपके पास क्या क्या माइलस्टोन्स थे, कैसे चैलेंजेस आपने उनका ओवरकम किए? देखिए, इस फील्ड में हम लोगों का बहुत सारा स्टूडेंट है। आपने जो बोल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अभी कितने स्टूडेंट्स होगा जो इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में है? मे सर बी अभी स्टील हो, कुछ भी हो। students, those who are in the construction field, can you please just reply in the chat box, or you can put a yes in the chat box. So we have here uh, in our earlier interaction, Ghanshyam Kumar. So he is working with Losren and Turbo. लार्सन एंड टुब्रो, LNT। Uh, yes. यस यस। And the other one. So yes, if anybody is in the same field, can you put yes just for our speaker to know that how many of you are there? Okay, only Ghanshyam Kumar is there with us now. Okay, आई थिंक नॉट सो मेनी स्टूडेंट्स आर। and Reshma Shalvi, Rahul Rahul Salvi, sorry, Reshma Salvi, Rahul Singh. ओके। Reshma is working in IGW.
ओके। And yes, and Ghanshyam Kumarji is working for information and technology. So yes, sir. So these are our students with in the same domain. ओके, सो नॉट मोर Mm, देन आई थिंक 5 mm, हियर। yes. सो देखिए, कंस्ट्रक्शन फील्ड में अचीवमेंट और टारगेट ये दोनों लेके हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो बेसिकली चार पांच स्टूडेंट्स ही है हम लोगों के साथ जो इस फील्ड में है जुड़े हुए हैं। तो चार पांच छोड़ के बाकी जितना स्टूडेंट्स है अभी, तो सबके लिए मैं जो बोलूंगा समझने में उतना आसान होगा कि हमको पता नहीं, बट फिर भी Mm-hmm. मैं कोशिश कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। हाँ, ऑयल एंड गैस सेगमेंट इज आल्सो इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, नो इशू। बट वो क्या अलग सेक्टर हो गया, स्टील इंडस्ट्री से अलग सेक्टर हो गया ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड ही है। तो ऑयल एंड गैस में भी जो है वो लोग भी स्टूडेंट भी समझ पाएंगे एक्चुअली। मैम, मेरा जितना प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ, Mm-hmm. इसमें सबसे मेरा जो अ, मतलब एंजॉय किया हूँ मैं, बेसिकली मैं जो एंजॉय किया हूँ वो है हम लोगों का सेल दुर्गापुर वाला प्रोजेक्ट था। Mm-hmm. वो इन द ईयर ऑफ 2020 टू 22, मतलब 2 साल मेरा जो सेल प्रोजेक्ट था दुर्गापुर का, Mm-hmm. ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। आप सोच Okay. लीजिए, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में हम लोगों को प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कोरोना पीरियड में अभी हम लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना था, पहले तो चीज। दूसरा चीज, हम लोगों का आना जाना रिस्ट्रिक्शन था। हम लोग एक गाड़ी में एक आदमी और ड्राइवर छोड़ के सेकंड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन और कोई नहीं बैठ पाएंगे। मतलब इस सिचुएशन में भी हम लोग 2 साल, उन 2020 टू 2022, ये 2 साल में हम लोग दुर्गापुर का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। हम लोग स्टाफ था उस टाइम में उस प्रोजेक्ट का करीब 17 स्टाफ था फ्रॉम SMS इंडिया। और Okay. साथ में हम लोगों का वहाँ पे एक इरेक्शन पार्टनर था, दुर्गापुर का लोकल इरेक्शन पार्टनर। उनका आदमी था करीब करीब 250 पर्सन, इंक्लूडिंग देयर स्टाफ्स। तो 250 आदमी हम लोगों का, 17 स्टाफ्स, और साथ में सेल का जो आदमी लोग था, सेल मतलब खुद दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो टॉप टू बॉटम जितना उनका पर्सन्स था, इतना आदमी हम लोग कोरोना पीरियड में कैसे कैसे सिचुएशन में वहां पे साइट में पहुंचता था, काम करता था, और फिर पहुंच के फिर अपना घर वापस आता था, फिर रेस्ट लेता था, फिर जाता था। तो पहले चैलेंज आप पहले ये सोच लीजिए कि किस सिचुएशन में हम लोग ये ट्रैवल किया और काम किया। फर्स्ट थिंग, Mm-hmm. क्योंकि वहां पे भी गवर्नमेंट, पहला तो बात है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लांट है, ऊपर से रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन तो एकदम भर के है, ऊपर से कोरोना, और साथ में सेफ्टी, ये सब मिला के हम लोगों को इतना रेस्ट्रिक्शन था। इतना रेस्ट्रिक्शन में भी हम लोग जो टारगेट हम लोग किया उस दिया गया उस टारगेट में हम लोग वो जॉब अचीव किया। इवन उससे शॉर्ट टाइम में हम लोग करके वो काम कंप्लीट किया। और हम लोगों को सब अलग से, आप बिलीव नहीं करेंगे, सबको इंडिविजुअल अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वहां से प्रोवाइड किया गया, जो कहीं दूसरा प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है। सेल Okay. खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों का नाम पे, सबका इंडिविजुअल नाम पे एक एक का अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बना के सेल उसमें गवर्नमेंट का मुहर लगा के हम लोगों को दिया, स्टैम्प देके। सो ये एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट था हम लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा सीख था कि कैसे काम किया जाता है, कैसे सिचुएशन हैंडल किया जाता है, चाहे हर सिचुएशन जिसमें पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा था, जिसमें Mm-hmm. पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा था, उसी सिचुएशन में हम लोग वो काम कर चुका था। तो बेसिकली आपको एक छोटा सा चीज से मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे हम लोगों को जब पहले वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था कंपनी को, दुर्गापुर का वो कॉन्ट्रैक्ट वो था 3 कन्वर्टर को रिवैम्प करना था। देखिए, ये Mm-hmm. वर्ड थोड़ा नया लगेगा बहुत आदमी को, फिर भी मैं Mm-hmm. थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवैम्प का मतलब है पुराना को हटा के नया लगाना, फास्टिंग हो गया। और कन्वर्टर चीज ये है कि ये इसको बोलता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, BOF, दैट इज कन्वर्टर। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस क्या होता है? एक तो पॉड जैसा रहता है,
स्टील का पॉट, हम्म जिसमें आपका कुछ लिक्विड स्टील डाला जाता है, कुछ आयरन स्क्रैप डाला जाता है, और ऊपर से ऑक्सीजन ब्लो करके वो टोटल मेटल को इस लिक्विड एंड हार्ड मेटल को लिक्विड बना के उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन देके वो लिक्विड स्टील बनाया जाता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। हम्म और उससे वो लिक्विड स्टील से फिर वो उसको हार्ड बना के स्लैब या बिलेट बना के उसमें से डिफरेंट डिफरेंट चीज बनता है, कई प्लेट बनता है, गाड़ी का जो थिन प्लेट उसमें वो बन जाएगा, वायर बार बन जाएगा, जिसमें घर बिल्डिंग ब्रिज बनता है वो बन जाएगा, पाइप बनता है, डिफरेंट डिफरेंट बनता है, मतलब उसका रॉ मटेरियल हम लोग वहाँ प्रोड्यूस करता था बीएफ फर्नेस में। तो वो बीएफ जो है उसको तीन ठो बीएफ था वो लोगों का, वो तीन बीएफ को हम लोगों को पुराना से चेंज करके नया लगाना था। अभी उसमें और एक कंडीशन था कस्टमर का, सेल सेल का क्या था, हम्म कि वो लोगों का तीन कन्वर्टर है, तो वो लोग एक एक करके हम लोगों को कन्वर्टर प्रोवाइड करेगा, और हम लोगों को एक एक करके उसको मॉडर्नाइजेशन करना है, मतलब पुराना खोल के नया लगाना है और चालू भी करके देना है। ओके। तो वो तीनों था साइड बाय साइड, करीब करीब एक के साथ दूसरे का डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर होगा मैक्सिमम। सर तो अगर तीनों। हम्म, अगर आपके पास कुछ इमेजेस होंगे जो आप अगर अगर शो कर सकें स्टूडेंट्स को, विच विल जी हेल्प जी जी देम जी। टू नहीं नहीं, मैं अंडरस्टैंड। मैं कोशिश करता हूँ, कुछ इमेजेस मेरे पास है, मैं यस। उसको आपको दिखाने के लिए सो कोशिश आप, करता हूँ। यस सर, अब डिटेल में बता पाएंगे and उन्हें भी थोड़ा समझ में आएगा कि किस चीज़ की बातें चल रही है। जी 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 जी। मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म। तो आप देखने से आपको पता चल जाएगा, सबको भी पता चल जाएगा जी एक्चुअली मैं क्या चीज़ का बात कर रहा हूँ। एक मिनट मेरे को यस थोड़ा ये सर। करने दीजिए। आप, यस सर, टाइम लीजिए। जी जी, ये आपको पिक्चर आया आपको? एक मिनट। आप प्रेजेंट कर पा रहे एक मिनट मैम, मैं देखता हूँ। देखिए अभी दिख रहा है? हैं? जी हाँ। जी जी। जी। ये क्लियर। देखिए, मैं कर्सर को ये हाँ। करके आपको दिखाता हूँ। जी हाँ। ये एक कन्वर्टर है, और ऊपर में देखिए एक लैडल है। ये लैडल मतलब लिक्विड स्टील लेके आता है, जो ये कन्वर्टर में डाला जाता है, ये पानी जैसा लिक्विड स्टील, मतलब इसका टेम्परेचर रहता है करीब करीब 1500 से 1700 डिग्री का अंदर, 1500 से 1500 टू 1700 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहता है। तो ये लिक्विड स्टील डाला जाता है, देन इसके ऊपर से स्क्रैप, जो स्क्रैप स्टील जो यूजलेस है वो डाल के ये कन्वर्टर के अंदर में, जैसे ये दूर में ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, वो थर्ड चल रहा है देखें, तो दिख रहा है ना मैम? यस सर। तो यस। ये सेकंड वाला जो कन्वर्टर है ये उल्टा करके रखा हुआ है, इसी में हम लोगों का काम चल रहा है, इसको जस्ट निकलना के लिए अभी ये प्रिपरेशन चल रहा है हम लोगों को। तो साथ में यहाँ एक नंबर में लिक्विड स्टील हॉट मेटल डाल के प्रोसेस चल रहा है सेल का, थर्ड में भी चल रहा है, और बीच में आपका हमारा काम करना था। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है, इससे इसका मैक्सिमम 20 मीटर, इससे इसमें मैक्सिमम 20 मीटर, और ऊपर में ये जो ऊपर से ये जो ईओटी क्रेन बोलते हैं इसको, जो ये लेडल को पकड़ के रखा है, ईओटी मीन इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन, ये क्या करता है, ये लिक्विड स्टील को वो साइड से लेके आते हैं, इसमें डालता है, कभी इसमें डालता है तो कभी इसमें डालता है, जब जैसे रिक्वायरमेंट है, और बीच में हम लोगों को काम करना है। अभी ओके। सिचुएशन में शुरू में आपको जो बता रहा था, एक तो कोरोना का टाइम, दूसरा है सेफ्टी। हम्म ये जो सेफ्टी मतलब किस लेवल का सेफ्टी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, वो आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए, कि ऊपर से लिक्विड स्टील जो हॉट मेटल जिसको बोलता है, वो 1500 1700 डिग्री तक टेम्परेचर वाला मेटल ऊपर से आ रहा है, साथ में स्क्रैप आ रहा है, और बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, और दोनों साइड में ऑक्सीजन ब्लोइंग करके ये लिक्विड स्टील बनाया जा रहा है, हम्म और बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये ट्रिमेंडस सेफ्टी के साथ हम लोगों को ये काम करना पड़ा, और पहले तो इसको कंप्लीट करके दिया, तो ये अभी चल रहा है, फिर ये दोनों में फिर रनिंग था वो लोगों को लिक्विड मटेरियल, क्योंकि सेल तो अपना खुद का प्लांट टोटल बंद करके वो अपना प्रोजेक्ट को लॉस में नहीं डालेगा ना, तो वो एक एक करके हम लोगों को दिया काम करने के लिए, तो ये पहले किया, फिर ये अभी चल रहा है, तो
ये करूंगा, और ये तो एग्जिस्टिंग चल ही रहा था। तो जब ये करके हम लोगों को दिया तो ये दोनों चला, तो फिर इसको किया। तो ऐसे वन बाय वन हम लोग काम करके ये लोगों को दिया। काम क्या किया, ये जो कन्वर्टर है ये पूरा निकाल के यहाँ नया कन्वर्टर डाल के ऊपर का जो जितना ऑक्सिलरीज इक्विपमेंट सिस्टम, विभिन्न जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर लाइंस, हम्म। ऑक्सीजन लाइंस, नाइट्रोजन लाइंस, कंप्रेसर्स, पाइप लाइंस, ये सबको चेंज करा के, ये जो फ्यूम एक्सट्रेशन सिस्टम, जो फ्यूम को कलेक्ट करके दूसरी जगह लेके जाके वहां पे उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करके क्लीन हम्म। एयर इन्वायरमेंट में छोड़ना जिसमें पोल्यूशन ना हो, तो ये टोटल सिस्टम हम लोग ये सब करते हैं करके ये लोगों को दिया हूँ। और ये प्रोजेक्ट को पहले जब एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, ये प्रोजेक्ट हम्म। शुरू होने से पहले हम लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है कि हम लोग कैसे करेंगे। हाँ। अगर प्लानिंग आपका बढ़िया एकदम सक्सेसफुल रहेगा, प्योर प्लानिंग होगा, तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना मस्ट है। कोई उसमें दो राय नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर ऊपर वाला ना चाहे तो। जो भी है उसमें हम लोगों का प्लानिंग बहुत अच्छा हुआ था। सब मिलके हम लोग जो प्लानिंग किया था कि कैसे काम करेंगे, कैसे कौन सा जॉब के बाद कौन सा जॉब करेंगे, तो हम्म। वो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग जो हम लोगों को बना था वो इतना अच्छा बना था। और साथ में हम लोगों का जो इरेक्शन पार्टनर, मतलब जो लोग काम करता था, मैन पावर सप्लाई करके जो लोग काम हम्म। किया, वो लोग इतना अच्छा हम लोगों के साथ सपोर्ट किया और हम लोगों का बात सुना, हम लोग जैसे बोला वैसे किया। तो ये प्रोजेक्ट जब प्लानिंग बन रहा था तब 90 डेज का प्रोजेक्ट बना था। एक एक कन्वर्टर का काम का एक एक का 90 डेज का ईच। लेकिन कस्टमर का रिक्वायरमेंट था वो, पहले वो लोगों का रिक्वायरमेंट था कि 72 डेज में खत्म करो। तो फिर हम लोग 72 डेज का एक प्लानिंग बना के वो लोगों को दिया। फिर वो लोग बोला नहीं, इसको 60 डेज में खत्म करना है। जब हम लोग 60 डेज में वो प्लानिंग को कंप्रेस करके 60 डेज में वो लोगों को दिया कि हाँ हम लोग 60 डेज में खत्म करेंगे, तो वो लोग फिर बोला नहीं, इसको 54 डेज में खत्म करना है। तो दे आर ऑल्सो द एक्सपर्ट, क्योंकि वो लोग भी बहुत दिन से अपना प्लांट चला रहा है। हम्म। लेकिन वी आर ऑल्सो एक्सपर्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट स्पेशली। सो हमारा जो कंपनी है एसएमएस इंडिया कंपनी, ये 150 साल पुराना कंपनी, जर्मन कंपनी। तो ये लोगों का एक्सपर्टाइज और भी अच्छा है। तो हम लोग 54 डेज का प्लानिंग को कंप्रेस करके वो लोगों को दिया कि चलो भाई हम लोग 54 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वाला कन्वर्टर हम लोग 54 डेज में ही कंप्लीट किया था। तो उसमें सबको नया मतलब रिस्क को हैंडल करके प्रोजेक्ट को कैसे स्मूथली काम करना, वो फर्स्ट वाला कन्वर्टर चेंज करने के बाद, और हमारा जो इरेक्शन कॉन्ट्रैक्टर था वो लोगों का भी कुछ आइडिया हो गया था फर्स्ट वाला। तो सेकंड वाला में हम लोग उसके बाद फॉर 50 डेज में कंप्लीट किया, मतलब इससे 4 दिन कम लगा दिया। और थर्ड वाला को हम लोग जो कंप्लीट किया वो 48 डेज में कंप्लीट किया। तो उसमें वो 2 दिन और घट गया था, मतलब 6 डेज एज पर प्लानिंग से पहले हम लोग खत्म किए। तो ये जो अचीवमेंट था, और ये जो मतलब टारगेट के साथ हम लोग जो काम किया, साथ में कोरोना का टाइम में जहाँ पे आना जाना भी रेस्ट्रिक्शन था सबके पास, इवन खाना भी ठीक से प्रोवाइड नहीं हो रहा था, मतलब अब सब शॉप्स बंद था, पूरा मार्केट बंद था, उसी में हम लोगों को इतना आदमी को खाना सही ढंग से प्रोवाइड करना, ये लोगों को लेके आना वन बाय वन और फिर काम करना, और ये काम डे नाइट हम लोग किया और इतना सक्सेसफुली इसको खत्म किया। सो इट वाज अ रियली ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, Surely, आई थिंक। yes. Surely it's a great achievement, sir, because 90 days के plan को 54 में करना, it's really a hard work. So जी it's जी। great. And so we have one question from Ghanshyam Kumar, Mr. Ghanshyam Kumar. If you can unmute and you can ask the question, please. जी। Hello, sir. Are you there? हाँ घनश्याम जी। Hello, sir. हाँ Sir, गुड मॉर्निंग। actually, very good morning, sir. बोलिए। एक्चुअली आपने इंडस्ट्रियल नॉलेज बताया, आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा समझाया। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था जी कि आप बंगाल से हो और जी। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम झारखंड में काम किया है, यस। एंड आज आप महाराष्ट्र के लिए, या फिर हमारे महाराष्ट्र, हम जो जहाँ ज्वाइन हुए हैं स्कूल हमारा महाराष्ट्र में, एमआईटी,
आप जी उनके जी। लिए कुछ बता रहे, कुछ काम कर रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप झारखंड में थे, जब आपने काम किया इंडस्ट्रियल से, तो वहाँ का रहन सहन या फिर वहाँ का कल्चर, वहाँ पे और इन्वायरमेंट वहाँ की कैसी है सर? झारखंड में मैं बेसिकली दो जगह में काम किया, जैसे जमशेदपुर और बोकारो। एंड दुर्गापुर तो बंगाल में ही है आपका? दुर्गापुर तो वेस्ट बंगाल में आता है। यस यस। तो आपका जमशेदपुर, नो डाउट, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इज जमशेदपुर। ओके। क्योंकि वो जमशेदपुर इतना अच्छा है, और सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जमशेदपुर का एक सराउंडिंग है जहाँ पे टाटा खुद अपना पावर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी ये सब कंट्रोल करता है, जो जुस्को नाम के, जो टाटा का खुद का है। और वहाँ पे इतना अच्छा वो लोग सिस्टम बना के रखा है। आई एम रियली फैन ऑफ टाटा। तो वो चीज मानना पड़ेगा वो वहाँ का। और सबसे ज्यादा चीज है वहाँ का एनवायरनमेंट, इतना बड़ा प्लांट होने के बाद भी जहाँ पे पोल्यूशन का कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं है। मतलब इतना अच्छा वो लोग कंट्रोल करके रखा है। पोल्यूशन कंट्रोल इन्वायरमेंट की सिस्टम हेल्थ इतना, सेफ्टी देखते हुए ये सब काम होती है वहाँ पे, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा मेंटेन करते हो अपना प्लांट में। जो बाहर उसका सराउंडिंग पूरा डोमेस्टिक एरिया है, अपना एम्प्लॉय लोग, बाहर का आदमी भी रहता है, लेकिन किसी का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई एनवायरनमेंट में किसी का कोई डिजीज या कुछ जो होता है ऐसा बहुत कम है। इतना प्योर क्लीन एयर है। और सबसे अच्छा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जो वीकेंड में आपका जो बगल में जुबली पार्क है ना, वहाँ पे अगर आप चला जाएंगे वो पार्क में, बच्चे लोगों को लेके, अपना फैमिली लेके, तो आप सब भूल जाएंगे। इट्स फुल ये ऑफ चीज बहुत ऑक्सीजन एंड बढ़िया। गुड एनवायरनमेंट फॉर जस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके। और साथ में बोकारो भी मैं झारखंड में था, बोकारो। बोकारो नो डाउट वो भी अच्छा सिटी है, वो भी तो मुझे अच्छा इंडस्ट्री लगा। इंडस्ट्री होने से वहाँ के आम लोग पे फिर जो, या फिर जो आम जनता है वहाँ पे, जो कि नॉर्मल काम कर रहे हैं, लाइक इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, कोई बाहर काम कर रहे कुछ, उन लोग पे कोई इफेक्ट या फिर उन लोग को कुछ नुकसान, प्रॉफिट एग्जैक्टली अगर? इफेक्ट, इफेक्ट तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है। ऊपर से वो लोग इसका साइड इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट मतलब क्या है, अच्छा वाला साइड इफेक्ट वो लोगों को पॉजिटिव मिल रहा है। निगेटिव दोनों होते हैं सर क्या? जी जी, नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव मिलता है ज्यादा। यस क्योंकि यस। वो स्टील इंडस्ट्री का अपना हॉस्पिटल रहता है, अपना ट्रांस रोड वगैरह वो लोग अपना अपने से मेंटेन उनका करता है, जैसे गवर्नमेंट जब, से हटके अपना सारा प्रोजेक्ट जो है सब गवर्नमेंट से हटके एग्जैक्टली रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो आम आदमी भी उसको एवेल करता है। तो इसका ओके। पॉजिटिवनेस इफेक्ट ज्यादा है। यस। सो इट्स ओके। ग्रेट, मतलब इतना इन्वायरमेंट का ख्याल रख के वहाँ पे काम हो रहा है जी मतलब जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज अगर इसे फॉलो करें तो पोल्यूशन भी बहुत कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो Currently, most of the industry following these parts, ma'am. EHS regards. ओके, देन इट्स Otherwise, वेरी, इट्स ग्रेट बिकॉज दैट दे आर। इट्स a मैंडेटरी पार्ट ऑफ इंडस्ट्री नाउ। uh, and we got certified about that things, especially. एग्जैक्टली Yes. एग्जैक्टली। गुड टू नो दैट सर। यस। सो सर अभी हम और थोड़ा जानना चाहेंगे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस डोमेन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो जी। आपके हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होता क्या है, मतलब उसमें और कौन से काम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं? अ, आप अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बोलेंगे, जैसे मैं एक सिंपल सी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, जैसे ये दुर्गापुर वाला प्रोजेक्ट का ही ले लीजिए। ये तो एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है मतलब इसमें पहले जो होता है, इसमें सब टाइप, हर स्ट्रीम, जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम का पहले बात कर रहा हूँ, स्ट्रीम जैसे सिविल, आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी सेक्टर का इंजीनियरिंग जो भी है, सब टाइप का आदमी का जॉब का अपॉर्चुनिटी ये स्टील इंडस्ट्री में है, क्योंकि सबका जॉब इसमें है। साथ में आपका एडमिन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एचआर है, फाइनेंस है, अकाउंट्स लेके जो रिलेटेड सब टाइप का आदमी का अपॉर्चुनिटी इसमें रहता है। बिकॉज ये एक इंडस्ट्री हर फील्ड को लेके इकट्ठा होके तब जगह बनता है, तब जाके एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस रेडी होता है। तो सबका अपॉर्चुनिटी इसमें रहता है। हम लोग डायरेक्टली फील्ड में काम करते हैं, तो इसलिए मैं फील्ड के बारे में ज्यादा बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ यही काम चलता है, बट नो, सब सबके साथ अटैच रहता है, और सब मिलके ही एक बड़ा इंडस्ट्री बनता है। तो यहाँ पे हर फील्ड का आदमी रहता है।
ओके। तो सर ये यहाँ पर जिस मतलब इंडस्ट्रीज में जैसे काम होते हैं, जैसे आपने मेंशन किया है एओडी, बैग हाउस, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसमें? ये यस यस यस, एओडी आपका जब मैं एसएमएस पास ज्वाइन किया था तो एओडी होता है आर्गन ऑक्सीजन डी कार्बोराइजिंग। मतलब स्टील का डिफरेंट डिफरेंट टाइप रहता है ना, जैसे माइल्ड स्टील, फिर स्टेनलेस स्टील, ऐसे टाइप का। स्टेनलेस स्टील में जैसे आपका वो जो बर्तन वगैरह जो बनता है एसएस, या हाई क्वालिटी स्टील में जो टूल्स वगैरह बनता है वो एसएस स्टील होता है। तो एसएस स्टील प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को चाहिए एक दूसरा टाइप का कन्वर्टर, जो आपको दिखा रहा था पिक्चर में कन्वर्टर। हम्म। तो वो कन्वर्टर को बोलता है एओडी, आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजिंग। वो एओडी में ही ओनली जो प्रोसीड्यूर चलता है प्रोडक्शन का, उसी में सिर्फ एसएस बनेगा। और वो एसएस प्लांट हम बनाया था जाजपुर में, जेएसएल जिंदल स्टेनलेस स्टील में। तो उसके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ एओडी में। अभी आप बोल रहे हैं कि बैग हाउस, ये जो अभी एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ना, कि हम्म। जो आप देख रहे थे कि कन्वर्टर में जब लिक्विड स्टील डाला जाता है तो हम्म। उसमें से जो फ्यूम उठता है उसमें हम्म। आयरन डस्ट रहता है, बहुत सारा स्मोक रहता है, बहुत सारा मटेरियल पार्ट रहता है, सीओ रहता है, जो डायरेक्टली अगर एनवायरनमेंट में आएंगे तो वो सीओ हम लोगों को लंग्स में कैंसर प्रॉब्लम कर देंगे। तो वो हम्म। सब जब हम लोगों का बैग हाउस जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है वहां से, फैन का थ्रू वो हवा ओके। को एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई करता है। जितना डस्ट पार्टिकल्स, सीओ, डस्ट, पहले तो डस्ट पार्टिकल्स को बैग हाउस ले लेता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके वो नीचे में एक जगह डाम करता है, वो वहां से कलेक्ट होकर दूसरी जगह, मान लीजिए वो सीमेंट इंडस्ट्री में चला गया, या किसी इंडस्ट्री में चला गया, ब्रिक इंडस्ट्री में चला गया, ब्रिक बनाने के लिए या सीमेंट बनाने हम्म। के लिए, जो भी है। और वो जो प्योर एयर जो आता है, प्योर एयर को तो डस्ट फ्री कर दिया, बट उसको तो सीओ फ्री कर नहीं पाया। तो क्या हम्म। करता है वो बैग हाउस से वो एयर आके, सीओ वाला एयर आके आपका एक चिमनी जैसा रहता है जिसको फ्लेयर स्टैक बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मतलब फायर क्रिएट करते हैं। तो फायर क्रिएट करने से वो सीओ जल जाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके। तो हम्म। जलने के बाद सीओ बन जाता है CO2। वो CO2 हम लोग एयर में छोड़ते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल वो एयर में छोड़ते हैं थ्रू फ्लेयर स्टैक, थ्रू चिमनी। तो ओके। क्या हुआ, सीओ और डायरेक्ट पोल्यूशन में आया नहीं, एयर में आया नहीं, तो हम्म। इफेक्ट उसका है नहीं, वो CO2 बन के चला गया। और CO2 तो हम लोगों का एयर में रहता ही है, जो पेड़ पौधा लेते हैं अपना हम्म। खाना बनाने के लिए। तो दिस इज द सिस्टम। तो ये ओके। सब चीज हम लोगों के रहता है। जैसे बैग हाउस में, बैग हाउस जैसे एक सिस्टम है यूनिट का, वो आपका एओडी में रहता है, वो आपका BOF के साथ रहता है, वो आपका LHF के साथ रहता है। हर यूनिट के साथ वो सिस्टम एक कंपलसरी सिस्टम है जो एयर को पॉल्यूट ना करने दे, इसके एलएचएफ लिए। मतलब क्या बता, क्या होगा इधर? LHF है लेडल हार्थ फर्नेस। ये ओ। सब एक एक टाइप का फर्नेस है, ओके। सबका अलग अलग एक प्रोसेस रहता है। अच्छा। जैसे आपको BOF बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के बारे में बताया, एओडी के बारे में बताया, LHF वैसे ही एक फर्नेस है जिसमें भी एक प्रोसेस रहता है लिक्विड स्टील बनाने का, एज हम्म। पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ओके। ये सब एक अलग अलग फर्नेस है। ओके। सो सर मतलब यहाँ पे तो फिर आप इंडस्ट्री में जब कोई प्रोजेक्ट करते होंगे तो वहाँ पर आप थोड़े बहुत कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी हेल्प लेते हैं, कुछ टूल्स की हेल्प लेते हैं उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, या उस प्रोजेक्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है इस चीज़ के लिए? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, विदाउट टूल्स तो अभी कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हम लोगों के सामने आ रहा है, इन फ्यूचर में भी जो आ रहा है, तो विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट टूल्स आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। सो अच्छा। दैट हम लोगों का प्रोजेक्ट में जो टूल्स यूज होता है, फर्स्ट तो मैं जो बोलूंगा वो, पहले हम लोगों को ना कि एक ड्राइंग मिलता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। वो ड्राइंग देख के हम लोगों को काम करना पड़ता है कि हाँ साइड में हमको क्या करना है, एज पर ड्राइंग हम लोगों को चलना पड़ता है। तो वो जो ड्राइंग जो बनता है, वो ड्राइंग बनता है थ्रू ऑटोकैड। ये ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, हम्म। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ड्राइंग बनता है। अभी वो ड्राइंग बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर हो गया ऑटोकैड। अभी तो ड्राइंग बन गया, उसके हिसाब से काम करना है। अभी काम कैसे करना है उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग, प्रॉपर प्लानिंग। वही प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए हम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों को यूज करना पड़ता है। वो मैंडेटरी है, आपको करना ही है यूज, नहीं तो आप
प्रॉपर प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जिसको ओके। बोलते हैं एमएस प्रोजेक्ट इन शॉर्ट फॉर्म। और एक है वो प्राइमीवीरा, जिसको P6 प्राइमीवीरा बोलता है। बट प्राइमीवीरा नॉर्मली जो लोग सिविल या ऑफिस वर्क में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जिसका है, वो लोग प्राइमीवीरा या P6 यूज करता है। बट हम लोग एमएस प्रोजेक्ट ही नॉर्मली यूज करते हैं प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए। वो साइड में एमएस प्रोजेक्ट ही ज्यादा एप्लीकेबल है, जो जिससे हम लोग अभी आप क्वेश्चन करेंगे एमएस प्रोजेक्ट कैसे यूज होता है, कैसे यूटिलाइज होता है। देखिए एमएस प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों को जब एक प्लानिंग बनता है प्रोजेक्ट का, वो प्लानिंग एमएस प्रोजेक्ट में माइक्रो प्लानिंग में एज ए शेड्यूल में रहता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपको एक फोटो दिखाया था, उस फोटो में जैसे दिख रहा था कि पहले किस टाइम में, किस डेट में, किस पोजीशन में इसको लाना है, उसके बाद क्या है, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वो एमएस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप डेट एंड टाइम के साथ वो मेंशन किया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमको ये करना है, इस टाइम के इस टाइम तक नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग उसमें रहता है, एमएस प्रोजेक्ट थ्रू हम लोग करते हैं। और उस प्लानिंग के बारे में सबको पहले जानकारी देना जाता है कि हम लोग इस प्रोसेस में, इस प्रोसीज्योर में काम करेंगे, और इसका टाइमिंग ये रहेगा, डेट ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो आदमी लोग सब थ्रू हो जाने के बाद वो लोगों को सामने एक पिक्चर ही आ जाता है कि एमएस प्रोजेक्ट के थ्रू कि हाँ हाँ हम लोग को ऐसे ऐसे करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आदमी को काम करने में बहुत आसान आसान हो जाता है। सो वो बहुत हेल्पफुल चीज है एमएस प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। ओके। तो सर यहाँ पे जैसे वन ऑफ आवर स्टूडेंट राहुल सिंह इज ऑलरेडी हैविंग सर्टिफिकेट इन एमएस प्रोजेक्ट एंड P6। सो वेरी गुड। राहुल, आपको अगर कुछ बोलना चाहेंगे, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे एमएस प्रोजेक्ट का, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड, राहुल। यस मैम, गुड गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैम सर का जो गाइडेंस है इंस्पायरेबल है। और जहाँ तक कि मैं जो अपने 13 ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जर्नी मैंने जो देखा है मैम, ये एमएसपी प्रोजेक्ट तो एक छोटा सा, मतलब ये ज्यादा भास्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं है जिसका कि दैट्स वाई जो है ये बहुत इजीली वे में मैम इसका यूज होता है। और जैसे भी कोई भी आपको चार्ट प्रिपरेशन है या जो भी चीज है वो आप एकदम सिंपल चार्ट्स में आप इसको इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इन दैट प्राइमावेरा P6 जो ओरेकल प्राइमावेरा है, ये हम लोग यूज करते थे मैम मैक्सिमम। इसमें आप कंप्लीटली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से लेकर के आप जो आज के डेट में एज ऑन डेट कर रहे हैं, इसमें जो सर जैसे बताए, इसमें एक जैसे बेसलाइन क्रिएट किया जाता है। बेसलाइन मतलब स्टार्ट टू एंड का एक जो है सारा चीज उसमें सिस्टम फिक्स कर दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है एंड इट विल बी द फिनिशिंग प्रोजेक्ट डेट, डिलीवरी डेट। और इन बिटवीन जो आपको मल्टीपल स्टेज में जो आपको प्रोजेक्ट करना है, या फिर इसमें स्टेजेस होते हैं कि आपको मतलब आप किस लेवल का प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग लेवल 1 है या 2 है, मतलब ये 5 टाइम्स तक प्लानिंग होता है जिसको कि बेस्ड ऑन आपके शेड्यूलिंग के बिहाफ पे मैम कहा जाता है। तो आप अकॉर्डिंगली आपको इसमें 3 चीज पे मेनली सारा प्राइमरी टूल्स है, मैन मटेरियल और रिसोर्सेस, डायरेक्ट मैन पावर, इनडायरेक्ट मैन पावर और आपका रिसोर्सेस। तो ये सारे जो भी आपके अलग अलग जो भी लीजेंडरी होते हैं, मतलब जो भी अलग अलग डोमेन के जो टॉप लीड्स होते हैं, वो एक टॉप लेवल का प्लानिंग होता है और इसको फिक्स किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको माइक्रो लेवल पे हर एक्टिविटी के लिए इसको जो है एक बार इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर सपोज किसी कारण से हर प्रोजेक्ट में कुछ फेल्योर्स होते हैं, अगर उसमें लग रहा है कि कुछ कंस्ट्रेंट के कारण उस प्लानिंग में कुछ फेल्योर्स हो रहा है, डिलीवरेबल में उसमें कुछ टाइमलाइंस में आप जो है अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो प्लानिंग इंजीनियर होते हैं तो उस पॉइंट को वो क्लिक करके कि ये शॉर्टफॉल्स का रीजन क्या है, उसका रिस्क एनालिसिस करते हैं, और उस बिहाफ पर फिर जाकर के वो अपने अपने जो लाइन मैनेजर होते हैं, जो फिर प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूटिव जो अपने होते हैं उसके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनसे वो चीज डिटेल्स करते हैं कि इस चीज में ये कंस्ट्रेंट है, ये प्रॉब्लम है, आप इसको इस अकॉर्डिंगली जो आप इसको डिलीवर करो। तो ये मतलब एक बैकबोन पार्ट कहा जाता है, और ये टूल्स जो है एज ऑन डेट बहुत ज्यादा जो है मैम फर्स्टाइल ह्यूज डिमांडेड है। और और जो है इसको इसी ये जो है बहुत ईज ईज ऑफ ट्रेंड है। ओके। एंड मैम मेरा सर से एक रिक्वेस्ट है मैम, सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, क्या हम लोगों के लिए सर अपने इस एसएमएस जैसे एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है, रिसाइकिल बेस पर भी जर्मन की बहुत सारी कंपनियां काम करती है, तो हम जी लोगों के लिए सर कुछ जॉब प्रोफाइल कुछ हो सकता है जो कुछ मस्त गुड कैरियर ऑप्शंस।
राहुल हम इसके एक, आप बोलिए यस सर, मैम, कंटिन्यू सर प्लीज। मैं एक्चुअली मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप लोगों के साथ शायद मैम शेयर कर देंगे। तो वो लिंक्डइन प्रोफाइल आप ले लीजिए। तो लिंक्डइन प्रोफाइल में हम लोग जुड़ जाएंगे तो आफ्टर डिस्कशन हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं बात। श्योर श्योर सर, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, एंड ये मैम एक चीज बता रहा हूँ, ये जो अभी जो सर हम लोगों को बताए हैं, ये प्राइमेवीरा P6 के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, तो ये मेरे साथ साथ ये सर जो और डिटेल्स में बता दिया, तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स जो है हम मेरे साथ, उनका और क्लियर हो गया है चीज कि जरूर कैसे सर। हम लोगों को सॉफ्टवेयर और टूल्स सपोर्ट करता है हम लोगों का फील्ड में। सर मैंने सर प्रोडक्शन फील्ड में भी काम किया है, माइक्रोपोर्ट में भी, स्पार्क डिवाइस में, कैटिया और एंसिस के बेस पे भी मैंने काम किया है सर बैंगलोर में। जी जी और जी। उसमें मुझे बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला था सर। मैं स्टार्टिंग फेज में ही सर उसको, लेकिन नहीं, मैंने छोड़ के कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ गया सर। जी जी, इसके ऊपर आपका नॉलेज ज्यादा रहेगा, इसलिए क्योंकि हम बोला हूँ पहले कि आप ऑफिस का आदमी जो है वो ज्यादा इसके ऊपर काम करते हैं। हम थैंक यू लोग सर। साइड वाला है, एग्जीक्यूशन वाला, तो हम लोगों को ऊपर ऊपर ही चलना पड़ता है, बट चलना पड़ता है लेके। ओके। सर अच्छा, तो मतलब ये प्लानिंग में ज्यादा यूज होता है। जी जी जी। हम्म। सो सर, और कोई स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहता है कोई, सो इफ यू कैन आस्क anybody, if you want, if you have any other questions, if you want to say anything, you can add now. मेरा अपने So स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, हम्म, आप लोग अगर इस फील्ड के लिए कुछ जानना चाहते हैं, एज पर माय नॉलेज, मुझे जितना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। okay. So anybody is who has experienced MS project and oh, okay. लाल जी आप कहना चाहते हैं कुछ? So yes, please unmute sir. Yeah. You can Good unmute afternoon, and everybody. good afternoon sir. गुड आफ्टरनून। Yeah. सर मेरा, हालांकि इस एक्चुअली आपका मैक्सिमम एक्सपीरियंस स्टील इंडस्ट्रीज के साथ रहा है, तो जी। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट का जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड एस, स्टील एस। यस। बेसिकली देखा जाए तो सभी स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, आइदर चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे बोकारो हो, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो, मैंने जमशेदपुर को और भिलाई स्टील प्लांट को काफी करीब से देखा हुआ है सर। जी। तो दे हैव ए ह्यूज एस एरिया। हम्म। अगर मैं भिलाई स्टील प्लांट के बारे में कहूँ तो मोर देन 10 किलोमीटर सर्कल्स एंड हाइट ऑफ एटलीस्ट 20 मीटर्स। हम्म। और उसे मैं बचपन से देख रहा हूँ, इट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यस नंबर वन। यस। नंबर टू इज द अबाउट देयर रॉ मटेरियल्स, हम्म। जिसके लिए कहा जाता है कि हो सकता है ये हमारे लिए 1000 साल के लिए जिसका रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। आई नो दैट एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास फिफ्थ और सिक्स, दैट टाइम माय फादर वाज सेइंग दैट कि हाँ यहाँ पर जो है कि हमारे यहाँ आने वाले 1000 साल के लिए, मतलब 1000 साल के लिए इतना रॉ मटेरियल है, दैट इज दल्ली राजहरा सर। बेसिकली इट वाज नोन एज दल्ली राजहरा। तो लेकिन अभी राइट नाउ आई मीन, काफी अगर देखा जाए उस पीरियड से लेकर आज की पीरियड में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा हम 40 साल ही आगे आए हैं, 40 साल, 40 या 50 साल के आसपास की। यस। और वो जो पूरा एरिया है खाली हो चुका है। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट एरिया दैट इज नोन एज राव घाट। अब उसको फिर से हम कह रहे हैं कि यस, आने वाले 5000 साल के लिए हमारे पास वहां पर जो रॉ मटेरियल्स है वो। तो या तो फिर हम लोगों ने, ऐसा लगता है कि सर इन दोनों के बीच में हम कहीं पर कोरिलेट नहीं कर पाए हैं। एक तो हमें एज के बारे में सोचना होगा जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा, जब भी मैं उस चीज को देखता हूँ स्पेशली इन समर, तो उसका कुछ यूजेबल प्लान है या कि कुछ किया जा रहा है सर, उसके बारे में जानना है। ये दोनों चीजें देखिए सर। इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से, मतलब कहा जाए कि खराब कर रही है, या कहें कि हम उसका अ, शोषण कर रहे हैं, एक हिसाब से हिंदी एकदम से शुद्ध लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। क्योंकि जी एक तरफ जी। तो मैं अपने पूरे जो ग्रीनरीज एरिया है उनको खत्म कर रहा हूँ, दूसरा जो ग्रीनरी एरियाज है एच डालकर मैं उसे खत्म कर रहा हूँ। उसके लिए कुछ इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्लानिंग बाकी इंडस्ट्रीज के द्वारा चल रही है सर? अ, जैसे हम लोगों का कंपनी का जो टेक्नोलॉजी है, SMS ग्रुप का, मतलब
इसका एक टेक्नोलॉजी अभी नया ये लोग R&D में है। वो है ग्रीन स्टील बोल के, आप नाम सुने होंगे। जो ग्रीन स्टील मतलब एस जो स्टील है उसको वो लोग ग्रीन स्टील के हिसाब से मतलब सबमिट करना चाहता है। वो कैसे कि हम लोग जो रॉ मटेरियल प्लस जो अ, आपका स्क्रैप मटेरियल जो उसको कैसे हम लोग रिसाइकलिंग करके उसको हम दोबारा काम पे लगाए। और जो पोल्यूशन जो एकदम नहीं कर रहा है ये तो नहीं है, हम लोग एनवायरनमेंट में पोल्यूशन इंडस्ट्री कर ही रहा है, चाहे किसी भी एंगल से, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो, जो भी पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। तो इसको रिसाइकलिंग करके कैसे हर एक चीज को जो इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको कैसे रिसाइकलिंग प्रोसेस में डाल के उसको पोल्यूशन को कम से कम बचाया जाए। तो वो वाला एक टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों का कंपनी में R&D में चल रहा है। अभी बाकी कंपनी भी है, जैसे SMS का कंपटीटर आपको मालूम होगा, डेनियली है, सीमेंस, प्राइम मेटल है। तो ये लोग भी पैरेलली सब अपना टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं कि फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी अभी एनवायरनमेंट को बचाना, और साथ में इंडस्ट्री भी चलेगा, सबका रोजी रोटी भी चलेगा साथ में। पहले जिसमें जो चीज है वो इंडस्ट्री को मतलब एनवायरनमेंट को बचाना। तो वो उसके लिए ये लोग ग्रीन स्टील बोल के एक टॉपिक उठाया है, जिसके जिसके ऊपर R&D चल रहा है। सभी कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो लोग है ये लोग अभी R&D कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आना ही है। अभी इतना डिटेल्स तो इसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी तो डिस्प्ले हुआ नहीं एक्चुअली क्या है। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ अच्छा आएगा। वो समय ही बताएगा आगे का। So it's good थैंक to यू वेरी know मच that. सर। Yes, थैंक यू। thank you, थैंक यू sir. थैंक Thank यू you, Lalji, for asking this question. And थैंक यू। also, yeah, it's great to know that, sir, that the industries are working actively on mitigating the pollution and also how to make it more eco-friendly. So it's a good initiative the industries are taking. यस। And yes, sir. So now let's move to deep dive into this session more. And sir, आप कुछ बता सकते हैं कि जो कुछ ट्रेंड्स जो आपने ऑब्जर्व किए हो इन द पास्ट 5 to 10 years, दैट हाउ द इंडस्ट्री हैज चेंज ओवर टाइम? क्या इनोवेशंस हमने ऐड किए हैं और फ्यूचर में और क्या इनोवेशंस यहाँ इस इंडस्ट्री में ऐड हो सकते हैं? कुछ जो आपने पास्ट से एक्सपीरियंस किया हो और जो एक, अभी, हाँ, जो चेंजेस आप देख एक, रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप एक चीज मैं बहुत, जैसे मैं जब LNT में था, आपको जो बोल रहा था, मैं LNT ज्वाइन किया था उस टाइम में, LNT में जब था तब मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन फील्ड में था। मतलब मुझे साइड में खड़ा रह के आदमी से काम कराना है, ड्राइंग देख के एज पर ड्राइंग काम कराना है। जो रिसोर्स मेरे को दिया जाता है वो रिसोर्स को यूटिलाइज करके, मैन पावर को यूटिलाइज करके वो काम कराता था मैं। और अभी का जो काम जो चल रहा है वही LNT अभी काम कर रहा है। जैसे मैं रिसेंटली पोस्टेड हूँ टाटा KPO कलिंगनगर उड़ीसा में। वहां पे वही आपका कन्वर्टर जो आपको पिक्चर में दिखा रहा था, जो 130 टन कन्वर्टर दुर्गापुर में किया था, यहाँ पे न्यू इंस्टॉलेशन है, कोई रिवैम्प नहीं है, मतलब पुराना को निकल के नया नहीं है, एकदम पूरा नया। वो भी 310 टन कन्वर्टर, जो 130 टन था, अभी का कन्वर्टर का कैपेसिटी है 310, तो डबल से भी ज्यादा। तो वो कन्वर्टर अभी इरेक्शन हो रहा है टाटा KPO में, कलिंगनगर उड़ीसा। जाजपुर रेलवे स्टेशन आता है उसका। तो जो भी है वहां पे वही LNT काम कर रहा है। हम लोगों का जो इरेक्शन पार्टनर LNT वो कर रहा है। लेकिन पहले का जो वर्क प्रोसीड्योर है था, और जब मैं था LNT में, और अभी का जो वर्क प्रोसीड्योर है, ये दोनों में बहुत ही अंतर है। बहुत ही अंतर है मतलब। पहले हम लोग आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बता के आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले कोई अगर एक कॉलम इरेक्शन होता था, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो कॉलम इरेक्शन होता था, तो क्या होता था, पहले कॉलम के अंदर में स्टेयर लगा के, सीढ़ी मतलब जिसको स्टेयर मंकी लैडर बोलते हैं, जिसमें चढ़ के आदमी ऊपर चढ़ता था, तो वो लगा के उसमें फॉलेस्टर रोप ये सब लगा के वो कॉलम को इरेक्शन किया जाता था।
इवन वो अलाइनमेंट के लिए अलाइनमेंट का कुछ आइटम उसमें लगा के वो इरेक्शन किया जाता था, जब मैं उस टाइम काम करता था, आज से 14 साल पहले, 14-15 साल पहले। लेकिन अभी का सिस्टम पूरा चेंज हो गया, क्योंकि अभी वो कॉलम इरेक्शन करने के लिए जस्ट आपको क्रेन जो लिफ्ट लेता है, लिफ्ट क्रेन, वो कॉलम को इरेक्शन कर देता है। इरेक्शन के बाद आदमी और कॉलम में चढ़ता नहीं है, उसमें स्टेयर मंकी लैडर लगाया नहीं जाता है। अभी मैन लिफ्टर रहता है। उस टाइम भी था, नहीं था, हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता था, एलएनटी में ही था मैं। बट अभी के एलएनटी में मैन लिफ्टर है। कितना भी डिस्टेंस हो ऊपर चढ़ना था, वो मैन लिफ्टर आपको 2 आदमी को लेके ऊपर चढ़ जाएगा, लेके चला जाएगा। वो कॉलम से सीलिंग खोल के उसको अलाइनमेंट करके बराबर लगा के वो करके आ जाएगा। मतलब कितना प्रोसेस इजी हो गया अभी काम करने का। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो प्रोसेस था, अभी का प्रोसेस जो है, इसमें टाइम भी कम लग रहा है, इसमें आपका रिस्क भी कम हो गया। आपका कोई भी फॉल, ऊपर से हाइट से फॉल का जो रिस्क है वो कम हो गया। आपको आदमी को कम टाइम में ज्यादा वर्क आपको निकल रहा है। तो ये वर्क प्रोसीड्यूर धीरे धीरे बहुत चेंज हो रहा है। और साथ में भी और एक चीज देखा गया कि सेफ्टी अभी इतना मायने रखता है सब चीज में। पहले सेफ्टी उतना मायने नहीं रखता था, मतलब आदमी हमेशा थोड़ा लुक आउट करता था, लुक ओवर करता था कि चलो भाई ये कर लो, हो जाएगा, कोई तो देख नहीं रहा है। लेकिन आदमी का दिमाग में ये था कि मैं सेफ्टी करूंगा तो मतलब कोई देख लेगा तो मुझे फाइन कर देगा। उस टाइम का थिंकिंग था। अभी का थिंकिंग आदमी के अंदर में ये तो आ ही गया, जो आना था वो अभी आ गया कि सेफ्टी कर रहा हूं मैं खुद के लिए, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर ऊपर से गिरूंगा तो मैं ही गिरूंगा, और गिर जाऊंगा तो प्रॉब्लम मेरा ही होगा, प्रॉब्लम सफर मेरा फैमिली ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ये जो सोच आदमी के अंदर में आ गया इतना साल के बाद, तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज है। और इसमें ये सोच के साथ आदमी फिर इसका ऑल्टरनेटिव भी सोच लिया। उसमें क्या, टाइम भी कम लगा, रिसोर्स भी कम लग रहा है, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, और साथ में ये तो साइड का चेंजेस के साथ अभी जैसे अभी देख रहे हैं कि फ्यूचर में सब कुछ डिजिटलाइजेशन बनते जा रहा है। तो ये डिजिटलाइजेशन भी हम लोगों के लिए बहुत मतलब मायने रख रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे हम लोगों को इतना सब कुछ स्मूथ और इजीली प्रोसीजर में ढाल रहा है कि हम लोग भी थोड़ा आगे चल रहा है फास्टली। यही चेंजेस आ रहा ओके सर। सो बट ये तो बहुत ज़रूरी है दैट वी टेक केयर ऑफ आवर पीपल वर्किंग फॉर अस। सो है। Exactly. yes sir, so that's great that it has evolved so much and the risk has been mitigated, life has been saved. तो सर एक्चुअली और मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, एमएस प्रोजेक्ट, तो ये एमएस प्रोजेक्ट आपको कहीं बजट एंड टाइम फ्रेम के लिए भी हेल्प करता है, बजट प्लानिंग में भी हेल्प करता है कि कैसे हम करना चाहेंगे उसे किसी ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को? मैम, ओके। एक्चुअली एमएस प्रोजेक्ट जो प्लानिंग शेड्यूल हम बनाते हैं, हम्म। वो घनश्याम जी से बात हो रहा था ना अभी कुछ देर हम्म। पहले, जो सर अभी हम्म। बता रहा था प्राइमी भीरा के बारे में। हम्म। तो एमएस प्रोजेक्ट भी वैसे ही आपका, जैसे मेरा जो शेड्यूल था, दुर्गापुर वाला प्रोजेक्ट के लिए जो आपको जो बोला था कि पहले 90 डेज का बना, फिर कॉम्प्रेस करके 72 डेज, देन 60, देन 54। हम्म। तो 54 डेज का शेड्यूल जो था हम लोगों का, उसमें पहले 90 डेज का जो बना गया था, उसमें क्या है ना, संडे हाफ डे हम लोग छोड़ दिया था। चलो हम्म। संडे हाफ डे छोड़ देते हैं, कम से कम जो आदमी लोग काम करेगा वो लोगों का कुछ हाफ डे के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा रेस्ट ले लेगा, कपड़ा धो लेगा अपना, पर्सनल वर्क। मार्केटिंग कर लेगा नेक्स्ट 1 वीक के लिए। तो हाफ डे छोड़ा गया था। तो फिर जब बोला गया नहीं 54 डेज में करना है, तो वो हाफ डे को हम लोग भी इंक्लूड कर लिया, उसमें कंक्लूड कर लिया। कंक्लूड करके पूरा 24x7 आवर्स का प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाया गया था। अभी देखिए, आपको जो बजट के बारे में जो बोला गया, बोल रहे थे आप कि एक प्रोजेक्ट दूसरे, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटीज के साथ इंटर रिलेटेड है। एमएस प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी सजाया जाता है कि ये काम यहाँ से यहाँ तक खत्म होगा, देन ये काम फिर चालू होगा, ये चालू होगा तो उसके साथ ये चालू होगा, या ये चालू होगा तो वो खत्म होगा तो ये चालू होगा। तो ऐसे करके पूरा एक्टिविटी सजाया जाता है।
हम्म, मान लीजिए कोई एक एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गया, काम हम्म, करते करते कुछ हम्म, इंसिडेंट हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, तो हम्म, फिर दूसरा एक्टिविटी उसका इफेक्टेड हो गया। और जब भी इफेक्ट हो गया तो मतलब क्या, दूसरे एक्टिविटीज के लिए तो मुझे अलग गैंग, अलग रिसोर्स, सब रेडी है काम कराने के लिए, अलग इक्विपमेंट्स हमको इंस्टॉल करना है। तो जब ये एक्टिविटीज खत्म नहीं हो तो मैं वो चालू नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब क्या, वो जो मेरा रखा गया जो प्लान बना के, जो मैन पावर, रिसोर्स, हम्म, इक्विपमेंट्स, तो क्या हम्म, उसका पूरा वेस्ट हो गया। वेस्ट मतलब हम्म, उस टाइम के लिए वो वेस्ट हो गया। तो उस टाइम के लिए जो उसका वैल्यू है वो मेरा इफेक्ट आ गया, तो वो एक बजटेरियल इफेक्ट में आ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एमएस प्रोजेक्ट बढ़िया से मेंटेन करके, एज पर एमएस प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट का प्लानिंग के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो ये सब माइन्यूटली फॉलो अप करने के लिए साइड में ये एमएस प्रोजेक्ट बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे एमएस प्रोजेक्ट हो या प्राइमेरा। बट साइड में हम लोग एमएस प्रोजेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्सेल के साथ, अब एक्सेल सीट है ना, एमएस हम्म, एक्सेल के साथ बहुत सिमिलैरिटीज है इसका, ये एमएस प्रोजेक्ट का। तो सो दैट कि जो लोगों को एमएस प्रोजेक्ट मालूम नहीं है, वो हम्म, एमएस प्रोजेक्ट को एमएस एक्सेल के कन्वर्ट करके वो लोगों को दिया जाता है कि चलो भाई तुम लोग एमएस एक्सेल में ही इसको मेंटेन, सो ओके, दैट कि इजी हो जाता है हम लोगों को। क्योंकि किसी को पकड़ के अभी तो एमएस प्रोजेक्ट सिखाया नहीं जाएगा ना, तो हम्म, चलो तुमको एमएस एक्सेल मालूम है तो एमएस एक्सेल में ही कर। तो वो एमएस प्रोजेक्ट, एमएस एक्सेल नॉर्मली बहुत सारा केस में सिमिलरिटीज है, तो इसीलिए हम लोग एमएस प्रोजेक्ट को साइड में प्रेफर करते हैं। ओके सर, ओके। सो लाइक ये आप लोग भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं एमएस प्रोजेक्ट अपनी प्लानिंग में, जी जैसे जी जी। डिस्कशन से तो पता चल रहा है। तो सर मतलब प्लानिंग के लिए हमें एक अच्छा माइंडसेट भी होना चाहिए, एक प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं? क्या माइंडसेट आप लेके चलते हैं कि आप लोग किस तरह से इससे कैसे कोई प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे? और क्या स्किल्स आपके हिसाब से होनी चाहिए किसी इंसान में, अगर ये इस इंडस्ट्री में हम काम करना चाह रहे हैं तो? देखिए, जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट अगर कंपनी, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट ऑर्डर लिया, हम्म, तो प्रोजेक्ट ऑर्डर लिया तो कंपनी सोचेंगे कि चलो फलाना आदमी को उसका प्रोजेक्ट मैनेजर, फलाना आदमी को उसको साइट इंचार्ज बनाना चाहिए। हम्म, तो आदमी जब प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट साइट इंचार्ज डेप्यूट हो जाता है, तो वो लोग क्या करता है, उस प्रोजेक्ट होने से पहले वो साइट साइट विजिट करता है, वो साइट में विजिट करता है फिजिकली। हम्म, विजिट करने के बाद उसका साइट का सिचुएशन, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, हम्म, क्या यूज कर सकता है, उसमें कौन सा टाइप का रिसोर्स उसमें डिप्लॉय कर सकता है, कितना मैन पावर उसमें एक साथ काम कर सकते हैं, वो एरिया छोटा है या बड़ा है, वो एरिया ऊपर में है या नीचे में है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का रास्ता क्या है, ये सब चीज जो है साइड में जाके पहले वो विजिट करके आ जाता है। और हम्म, कस्टमर से डिस्कशन करके कि भाई मुझे ये सिचुएशन है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सिचुएशन है, आपका यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है, तो मुझे ये रास्ता आपको ठीक करके देना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे बड़ा गाड़ी नहीं आएगा, छोटा गाड़ी आएगा, तो मुझे छोटा गाड़ी अगर आएगा तो मुझे इतना दिन चाहिए, अब जो हम्म, इतना दिन में बोलेंगे वो इतना दिन में नहीं होगा। तो ऐसे करके साइट विजिट करके एक डिस्कशन करके अब जाके, और साथ में जो प्रोजेक्ट मैनेजर या साइट इंचार्ज जो रहता है, वो लोगों हम्म, को तो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहता ही है छोटा मोटा हम्म, कुछ ना कुछ काम हम्म, के चलते। तो सो दैट सब मिला के वो लोग एक ओवरव्यू बना लेता है। हम्म, और वो ओवरव्यू और साथ में और प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंट्स रहता है, जैसे WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोल के एक पार्ट है, ये सब जो ऑफिस से मिलता है, मतलब हम्म, प्रोजेक्ट रिलेटेड टेंडरिंग के टाइम पे या जो भी है, वो सब लेके सब मिला के एक प्रॉपर प्लानिंग बनाया जाता है। जो फर्स्ट जो थिंग है, वो ऑफिस का डॉक्यूमेंट के साथ साथ, टेंडरिंग का डॉक्यूमेंट के साथ साथ, हम्म, साइट विजिट, साइट हम्म, जो ओवरव्यू, ये बहुत हम्म, काम पे लगता है। वो हम्म, वो उसी टाइम वो आदमी का जो एक्सपीरियंस है वो हम्म, उसमें रिफ्लेक्ट होता है, वो कितना एक्सपीरियंस वाला आदमी है। जो साइट विजिट करके उसको पता चल जाएगा कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, हम्म, तो उसके ऊपर बेस करके ये प्लानिंग बनता ओके। तो मतलब एक तरह से आप पूरे एरिया का सर्वे करते हैं कि कहाँ पे क्या है और किससे किस तरह से हमें यूज करना है। है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि इफ आवर स्टूडेंट्स वांट्स टू कंटिन्यू और वर्क इनटू दिस डोमेन, तो उनके लिए क्या माइंडसेट, उन्हें क्या स्किल्स डेवलप करने चाहिए अपने, और कैसे किस माइंडसेट को लेके चलना चाहिए आगे? मैम, मैं तो सभी को एक ही बात कहूंगा कि
कंस्ट्रक्शन फील्ड एक अच्छा फील्ड है, इसमें फ्यूचर ग्रोथ है। फ्यूचर में भी ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी है। जैसे अभी स्टील इंडस्ट्री में भी देखिए, अभी पूरा इंडिया में अप टू 2030 में हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर किया है कि 2030 में हम लोगों को करीब, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं आ रहा है, कुछ 15 मिलियन टन पर ईयर प्रोडक्शन चाहिए। जबकि हम लोग चाइना से compete कर सकते हैं, कि चाइना से जो हम आउट कंट्री से जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका जरूरत ना पड़े, उल्टा हम्म हम अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, प्लस अब हम भी अपना बाहर में एक्सपोर्ट करें। तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोगों को इंडिया में आ रहा है। सेल का बहुत एक्सपेंशन होने वाला है, जैसे बोकारो, इसको इसको आसनसोल, फिर दुर्गापुर, राउरकेला, सब जगह में एक्सपेंशन होने वाला है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है सामने। और आपको पहले ही बोला हूँ कि स्टील इंडस्ट्री में नॉट ओनली इंजीनियर का अपॉर्चुनिटी है, हर स्ट्रीम का, हर फील्ड का आदमी का अपॉर्चुनिटी है। सो इसमें, और ग्रोथ भी इसमें बहुत अच्छा है। तो और साथ में आपको जो नॉर्मली बी इंजीनियरिंग जो है, बी और बीटेक, हम्म चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हम्म ऑटोमेशन जो भी है, सब हम्म फील्ड का आदमी इसमें आ सकता है। और मेरे ख्याल से जब आप हायर लेवल में आप आ जाते हो ना, हम्म तो नॉट ओनली बी और बीटेक सफिशियंट होता है। वो बहुत मेहनत करके आप मैनेजमेंट लेवल में पहुंचेंगे अगर वो सिर्फ बी टेक ये सब करेंगे। साथ में अगर ऐसे एमबीए, पीजीडीए, ये सब टाइप का डिग्री आप पैरेलली लेते रहेंगे, हम्म जैसे मैं MIT SDE से ले रहा हूँ PGDM, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा फिर आपको, आपको ऊपर उठने के लिए, आपका फील्ड में आपको ऊपर उठने के लिए। तो मुझे तो लग रहा है MIT SDE का ये PGDM मेरा लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उसके लिए मैं कर भी रहा हूँ। तो हम्म ऐसे आप ग्रोथ, और साथ में जो लाइव वेबिनार, आपका फील्ड में जो लाइव वेबिनार आता है, साथ में जो, हाँ, लाइव वेबिनार, और ये जो बीच बीच में सबसे अच्छा लगता है मुझे, ये जो पॉडकास्ट मिलता है ना मैम, हम्म MIT SDE से, छोटा हम्म छोटा, हाँ, कुछ ही सेकंड का, कुछ ही मिनट का, ये जो पॉडकास्ट, yes, ये हम्म एनर्जी दे देता है मुझे काम करने के लिए, दोबारा जॉब में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत अच्छा एनर्जी दे देता है। so great sir तो that हम्म तो ये सब चीज आपको लेके आगे बढ़ना है, और साथ में आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपका नया क्या चीज आ रहा है। जैसे अभी ये जो ChatGPT, AI, आर्टिफिशियल हम्म इंटेलिजेंस, हम्म ये कौन सा फील्ड में अपना हाथ बढ़ा रहा है, हम्म क्या 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 चीज में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा ये AI, ChatGPT। तो आपको हम्म ये सब चीज में भी फॉलो अप रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, हम्म सो दैट कि छोटा छोटा ट्रेनिंग या कोर्स आपको ऑनलाइन में जो मिलता है, तो हम्म ये सब करके आपको खुद को अपडेट रखना है। okay. क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो ये सब करके ही आपको फील्ड में आगे रहना है और आगे बढ़ना तो सर मतलब टेक्निकल डिग्री को सपोर्ट करने के लिए एक मैनेजमेंट डिग्री होनी ही चाहिए अगर है। एक आगे लेवल में बढ़ना है आने तो के बाद, यस यस, एक लेवल में आने के बाद वो जरूरी हो जाएगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, चलो भाई ये डिग्री होने से मुझे अच्छा हम्म होता है। जब मैं इतना दिन के बाद रियलाइज किया हम्म कि मुझे एक डिग्री चाहिए, तभी तो मुझे PGDM में एडमिशन लिया हूँ। ओके सर सो सर और सर मुझे कंटिन्यू लग रहा है मैम ये हेल्पफुल होगा। तो वो आप भी थोड़ा बताइए, इज इट हेल्पफुल फॉर माय फ्यूचर लाइफ? यस सर ऑफ कोर्स योर मैनेजमेंट व्हाई नॉट सर यस यस। that will definitely थैंक help यू। you थैंक यू। and sir so good to know that you MITSD is also helping you a lot to you to grow and adding to your profile तो सर यस, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स है कुछ जो उन्हें लाइफ में फॉलो करने चाहिए अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपना करियर डिसाइड करना चाहते हैं कहीं ग्रो होना चाहते हैं तो उन्हें क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए और ऐसी क्या चीजें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए देखिए क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये मैं दो ही लाइन में बता सकता हूँ मैम। हम्म जो मैं फॉलो किया हूँ एक्चुअली, हम्म एक चीज बोलता है, सब बोलता है कि आप इतना ऊंचा लेवल में पहुंच गया, आपके पास इतना कुछ है। तो जैसे एक छोटा इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा घटना, टाइम है ना मैम अभी? हाँ सर सर हाँ, जैसे
मैं जब वो आपको बोला था ना, जमशेदपुर में ईश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी में फर्स्ट ज्वाइन किया था, हम्म। तो उस टाइम में मैं जब ज्वाइन किया एज ए साइट सुपरवाइजर, तो मैं एक बाईसाइकिल खरीदा था मैम। और उसी वो बाईसाइकिल से मैं अपना साइट जाता था। मेरा रूम एक किराए में लिया था, और बाईसाइकिल हम्म। साइकिलिंग करके मैं साइट जाता था। हम्म। और जब कुछ दिन पहले मैं वही प्लांट में वही मैंने रास्ता से मैं जब अपना गाड़ी चला के उनसे जा रहा था, तब मुझे याद आ रहा था कि मैं एक दिन बाईसाइकिल से इसी रास्ते से इस कंपनी में जाता था। तो तो उस टाइम में मैं सोचता था कि मैं अगर सो जाता, तो ये जो लाख बोलता है, तो मेरा लाख भी सो जाता। तो मैं सोया नहीं तो मेरा लाख सोया नहीं, एलयूसी के। तो हम्म। मैं क्या किया, रास्ता में निकला। और जब रास्ता निकला तो मुझे रास्ता मिल गया। तो ये दो लाइन है मेरे लिए। सोना नहीं है, लाख लाख को सोने नहीं देना है। रास्ता में निकल पड़ो तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है, यही चीज है ना। ओके, सो मतलब स्टूडेंट्स जो भी, अगर जो डर है अंदर उसे हटाइए और आगे बढ़ जी जाइए। जी जी जी। चलिए, ये तो मतलब ये तो बहुत इंस्पायरिंग है टू नो दैट आपने भी कभी हार नहीं मानी एंड यू केप्ट कंटिन्यूइंग इन योर वर्क। सो जी yes sir, so that I hope that that must have inspired all our students. So students, अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन है, if you want to ask anything, you want to know more about this industry, you can ask your questions now. So Anand Mane has raised his hand. If you want to ask, you can unmute your or in unmute and you can ask the question. हेलो सर। यस। हेलो। हाँ सर, नाइन ने यस अभी कोई इसके लिए जॉब है क्या सर? क्योंकि नन आईटी रहता है ना, टेक्निकल। सर, सर थोड़ा टेक्निकली क्लियर जो करें। नहीं, वो भी नन नन टेक्निकली लोगों के लिए कोई जॉब है क्या स्टील इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ? नॉन टेक्निकल ये जॉब है ना सर। जैसे आप आपको नहीं, कौन बोला को? जो एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे एचआर सेक्टर में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, हाँ सर। एचआर, फिर सेफ्टी रिलेटेड है। जैसे आप सेफ्टी का कोई कोर्स कर चुके हैं, एचएससी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, तो वो नॉन टेक्निकल हो गया। तो सेफ्टी के ऊपर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी स्टील इंडस्ट्री में है, जो सेफ्टी रिलेटेड है। और जो अभी मेन चीज है अभी, मतलब आप एक पॉइंट भी सेफ्टी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ठीक है। सेफ्टी रिलेटेड फील्ड जो है अभी फास्टली ग्रो कर रहा है, खास करके कंस्ट्रक्शन फील्ड में। नॉट ओनली स्टील इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन फील्ड में। ओके। और स्टील जो सा स्टार्टिंग से एंड तक कैसा बनता है, थोड़ा प्रोसेस बता सकते हैं नॉलेज के लिए? सर। स्टील है ना, स्टील स्टील का जो प्रोडक्शन होता है सर, हाँ हाँ। स्टार्टिंग से एंड तक कितने डिवीजन में स्टील बनता है सर? सर स्टार्टिंग से एंड तक तो बहुत सारा यूनिट रहता है, स्टेप बाय हाँ। स्टेप। हाँ एक सर। इन नक्शल में आपको बता रहा हूँ। जैसे रॉ मटेरियल जब आता है, हाँ रॉ सर। मटेरियल आने के बाद उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। ये वन टाइप ऑफ फर्नेस जो मैं आप इस स्फीयर में मैं बताया नहीं, अभी तक का टाइम में मैं बताया नहीं, ब्लास्ट फर्नेस। तो हाँ सर। उसमें रॉ मटेरियल आयरन और कोल कोक ये सब दे के ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद उसमें इग्नाइट करके उसको जला के वो लिक्विड स्टील बनाया जाता है। वो लिक्विड स्टील को लाके ये बीओएफ जो मैं बताया शुरू से, वो बीओएफ में लाके डाला जाता है, साथ में स्क्रैप। तो वो ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस के बाद बीओएफ में आता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। देन बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से आता है एलएचएफ, लेडल हार्थ फर्नेस। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक एक फर्नेस में आके एक एक टाइप का कंपोजिशन डाल के इसमें कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट रहता है, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस में वो स्टील का ग्रेड ग्रेड बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप का ग्रेड। और जब वो ग्रेड बन जाता है, तो एलएफ के बाद वो चला जाता है कास्टर में। कास्टर एक अलग यूनिट है, एक अलग प्लांट है, जिसमें वो चाहे वो ब्लेड बने या स्लैब बने, या बिलेट और स्लैब ही बनता है, या गांठ बने, तो वो बन के वो निकल जाता है एक सॉलिड स्टील बार, या मोटा सा 100 बाई 100 या 200 बाई 1 मीटर का, 6 मीटर लेंथ या 12 मीटर लेंथ का वो बार बन जाता है। उसको लेके आप रोलिंग मिल में चला जाता है, चाहे वो कोल्ड रोलिंग हो या हॉट रोलिंग हो, उसमें चला जाता है। उसमें जाके वो डिफरेंट डिफरेंट
फिनिशिंग पार्ट बनता है, चाहे वो आपका वायर रॉड मिल में और रॉड बने, या पाइप बने, पाइप में पाइप बने वो डिफरेंट सेक्शन का, सिमलेस पाइप, सिम पाइप बने, या आपका प्लेट बने, डिफरेंट टाइप का प्लेट। तो ये एकदम फाइनल एंड तक, शुरू से लेकर आखिरी तक ये फाइनल प्रोडक्ट होके वो चला जाता है। ये टोटल लेके एक इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री बनता है, जो अभी Yeah. ये स्टील इंडस्ट्री टाटा के पास है, जेएसडब्ल्यू के पास है, जेएसएल के पास है, हमारा इंडिया में सेल में जितना प्लांट है सब में है। So, Mr. Anand Mane sir, I think your doubt has got cleared. Hello, if you can hear me. Okay, so if anybody else has any question, if you have, you can ask now. We are at towards the end of the session. So if you want to get your doubts cleared, you can ask now. Or we have an activity for you all, so we will continue with that otherwise. Okay. So, sir, so just to add a little more fun to this session, okay, here, Kiran, Kiran has informed us that she is currently working with PMC, Project Management Consultant, Wood Group for past 15 years here and in Kuwait, okay, in Kuwait Oil Company, and she is handling projects here. So, Kiran, would you like to add something, and you would like to unmute and say something about your profile, your experience? यस, आप कभी बाहर का एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे तो हम लोग भी नॉलेज लेंगे इसके ऊपर। Okay. Kiran, are you there? If you can hear us, you can unmute and you can share. Hmm. Okay, ठीक है. No, no, not a problem, Kiran. You can share it later with us. So yes, there is a small activity. Okay, very good. Thank you, Kiran, for your comment here. And yeah, we have a small activity here. Is just to add little fun to to this session. Is today we have talked about metal and basically about steel. So I would like you all to think at least some 7 most creative uses of metal or steel. So for that, please don't start thinking now. We are dividing you in a group. Yes. So in that group, I will be dividing you into 7 groups. Okay, because this is 7th session. So let's add little more fun to it, isn't it? So I'm dividing you into 7 groups. You will get into breakout rooms. You can decide the most creative 7 uses of metal or steel. Okay, and the screen will pop up at your uh, device. So you will have to just select and enter into the room, discuss, and then come out. So I will give you around 3 minutes to discuss it. Okay, so there are around 6 to 7 students, and you can enter into the room for discussion. Just give me a minute. Okay, I'm just opening it, and yeah, so you will see a pop-up on your screen, and you can join that room. Students, if you can see on your screen, please join the room for discussion. This is an activity which will help you to collaborate with each other, to know a little more about each other. So do join and discuss it with your fellow peers. Try to know them, try to get their ideas.
Those who haven't joined, please join quickly. We have only 3 minutes to continue this activity. There's nobody in room 6. Prakash, please join. I think many of them are not interested. Yeah, so they are joining. Some of them might not be seeing the pop-up there, so that's why sometimes that happens. Okay, room number 2. Uday, please join room number 2. Pooja, if anybody is facing any issue, you can mention here and we will help you to join the room. Okay, so your discussion is going on. It's great. So the breakout room would be closed soon, and those who couldn't join, we will definitely plan something like this in our next session. So I hope that the students are back here with their members, with their team members. Okay, so anybody who has the most creative way, 7 uses of any metal or steel. Hello? You all can exit your breakout rooms and you can answer now. Building intro. Okay, Lalji, he is always ready to answer and to comment. Very good. Thank you for being so interactive. Building infrastructure tools. Ships, trains, cars, bicycles, machines, electrical appliances, furniture. So great. So these are some of more than 7 actually uses which you have given here. Anybody else who wants to tell us any other use? Okay. Okay, great. So thank you students for that you participated in this activity and you answered. So now we will, if you have any other question, you can ask or we will wind up the session now. So, okay. Yes, Laji. This is not for this class, ma'am. Actually, I have missed my 2 class. Especially, I have message to you. It's, on for the class dated 11th and 12th and 13th. I received So you mail are on dated talking of about your live sessions? yes. So So you can raise a ticket and we will thank inform you. you. Yeah, you will Yes, be able thank to you. see the recordings, yes, on Yes, yes. LMS. Yeah. Okay, thank Okay. you. So thank you so much all the students for staying till the end of the session and participating in the activity, and special thanks to Lalji for being so active always and interacting with us and making this session a little more fun. So thank you so much students for staying here, and thank you, sir, for your valuable time and for volunteering to be a part of this session. And the way you have shared your experiences, आपने जो जिस तरह से उसे present किया है, उसको इतना relatable बनाया है और हमारे students को guide किया how they can also grow in this. तो thank you आपका ये contribution के लिए, and it was great to have you here. So once again, thanks for your time, dedication, and your valuable inputs into this session, sir. Thank you from my end, and I am So, very happy thank to you, sir. join this type of program. So thank you so much. So student, there is a poll question for you all just to
give your views on how much you like this session. So I have launched the poll. It will be on your screen. Please respond to the poll so that we can know. Can you see the poll question there? No, ma'am. You can't see it. Okay. Yeah, it is launched. It's not Still launched. waiting. Yeah. Okay. Now I hope that you Yeah, can see. it's okay, fine. Okay. Yeah. Yeah, thank you so much, students, for your beautiful comments. You can put an elaborate comment like Lalji always does. So thank you, Lalji, for your wonderful comment for today's session. Thank you, So ma'am. thank you so much. Please quickly respond to the poll question, and we can wind up the session. And I have already shared the LinkedIn profile of Sir, of our speaker today, and you can stay in touch with him for any of your queries. Also, I will share one student detail form with you immediately so that you all can, if anybody is interested to put your details for being the next speaker, and in which you should definitely participate, by the way. But if you are interested, you can put the details here on this student detail form, and do check our sessions on YouTube channel of MIT SD. All our recorded sessions are available there on all the past 6 sessions which we have conducted so far, and this will be available soon to you all within 2 to 3 working days. So thank you so much for staying till the end, and have a good day, have a good weekend to you all. And Thank you, thank you, sir. everybody. Bye bye. Thank you, everyone, and have a Okay. good week. Thank you, ma'am. Thank you. See you all in the next session.